गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ब्रेकअप्स के बारे में बात करने वाले हैं। ब्रेकअप इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक. आई एम श्योर ऑल ऑफ you must have gone through or might go through it, and to understand what is breakup, why do we feel like that, why people in life who were so dear to you, you loved them so much, they loved you so much, the relationship looked so beautiful, and one day or gradually it is just getting over or it's just breaking. So it is very very sensitive topic. Why I'm making this relay is because I am handling 2-3 cases in which people are going through breakups, and one of them asked me that, ma'am, I want to understand one thing, why women get over breakup so easily and then men don't. Let's address this today. Do like and share this video with whom you feel that they might need this information. So I want to clarify this thing first. Here is that when breakup happens between a relationship, in a relationship, pain that is being suffered by the male partner and the female partner is equal. It is not that if you were in actually proper relationship where you both were involved equally, and you both were in love, and say commitment was there, everything was fine, which we call a healthy relationship, and due to certain reasons if you're going through a breakup, but then especially men, I want to tell you that women do feel bad, women do feel terrible, they feel pain emotionally and physically as you are, okay, but the timing is different. What happens is that after a breakup, the women immediately gets into grieving. The girl immediately gets into grieving. She is in pain. She's feeling terrible. She's talking to her friends. She's crying and everything. Okay. Whereas you guys just get numb. You just don't respond. You just don't want to accept that what is happening. You just want to ignore it. No, your mind, you don't want your mind to accept it that this is happening. So you just want to get away from it, and जैसे कहते हैं ना, पीछे धकेल दिया, और लाइफ में जो करते जा रहे हैं, you're working, you'll keep on working, you will keep her calling, you will not address the pain, you will not talk to your friends, you will do nothing. You are suppressing the pain. That is why girls जो है वो बहुत जल्दी ग्रीविंग में आती है, whereas men ग्रीविंग सिस्टम में या ग्रीविंग प्रोसेस में नहीं आते हैं जल्दी. इसीलिए आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्रेकअप 2 महीने पहले हुआ था और आपको 2 महीने के बाद यू आर मीटिंग योर गर्लफ्रेंड, यू फील कि शी इज ओके टाइप्स, whereas now I am not okay. बिकॉज यू टुक 2 महीने का बीच में जो तुमने पॉज लिया था ग्रीविंग सिस्टम से, या आपने जो वो फीलिंग्स दबा दी थी, उसकी वजह से आप लेट ग्रीविंग प्रोसेस में आए, और अभी तक आए भी हैं कि नहीं आए वो भी नहीं पता. So the problem here is that girls immediately get into grieving, immediately get into that trauma building thing or trauma suffering thing, whereas men pause it. They just pause that event there. So this is one of the reasons. So now let's understand why it hurts, why it pains so much. कहते हैं ना कि जब ब्रेकअप हो रहा होता है या जब ब्रेकअप हुआ है किसी रिश्ते से, तो हम सबसे ज़्यादा वी फील ब्रोकन, वी आर सो टेरेबली हर्ट, एंड हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, हमें कुछ, वी डोंट लाइक एनी बडी, वी डोंट वॉन्ट टू टॉक टू एनी बडी, वी जस्ट वॉन्ट टू बी इन अ शेल, है ना, वी डोंट वॉन्ट टू डिस्कस इट इन एनीथिंग. वाई डज इट हर्ट? द क्वेश्चन इज वाई डज इट हर्ट. सो हियर आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग. रिलेशनशिप आर लाइक, सपोज इट इज़ लाइक अ ह्यूमन. फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में किसी की डेथ होती है, अगर घर में कोई पेट है या कोई इंसान है, अगर हमारे वेरी क्लोज रिलेशनशिप में अगर किसी की डेथ होती है, तो हमें कितना दर्द होता है, कितना पेन होता है. एग्जैक्टली दैट इज वॉट इज हैपनिंग राइट नाउ. डाइंग ऑफ अ रिलेशनशिप इज एज गुड एज डाइंग ऑफ अ पर्सन, सो दैट इज वाई इट हर्ट सो मच. अगेन इट डिपेंड्स कि वो जो इंसान अभी ख़त्म हुआ है या जिसकी डेथ हुई है या किसी पेट की डेथ हुई है, वो आपके कितना क्लोज था. अगर वो आपके, जितना इंटेंसिटी ज़्यादा होगी क्लोजनेस की, उतना ही इंटेंसिटी पेन की ज़्यादा होगी, हर्ट की ज़्यादा होगी. जितना ज़्यादा टाइम आपने उस इंसान के साथ बिताया होगा, जितना ज़्यादा क्लोज आप उसके साथ एसोसिएटेड हुए होंगे, उतना ही ज़्यादा आपको दर्द होगा. Same way when it comes to breakups, it's like dying. Something is dying. Such beautiful relationship, such a feeling that you shared. उसके बाद होता क्या है, हमारा एक रूटीन बन जाता है कि अगर हम सुबह उठे हैं, then we are talking to each other. हम ऑफिस जा रहे हैं या हम कॉलेज जा रहे हैं, या हम उसके बाद भी मिल रहे हैं, हम कॉलेज में मिल रहे हैं, हम या वर्क प्लेस पे मिल रहे हैं, या फिर हम शाम को मिल रहे हैं. उसके बाद whatever happened in my day, I am telling to my boyfriend, and vice versa. And अगर किसी से नोक झोंक हो गई है, कुछ भी है, मतलब एनी इवेंट दैट इज हैपनिंग इन माई लाइफ, आई एम डिस्कसिंग इट विद यू, आई एम डिस्कसिंग इट विद माई पार्टनर. सो इट फील्स वेरी क्लोज, इट फील्स, इट्स लाइक सच अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. और इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड
जिसमें आप अचानक से अगर वो आपसे छीन लिया जाए तो ऑफ कोर्स यू विल फील लॉस्ट कि कल तक सब कुछ सही था और आज अचानक से कुछ भी नहीं है। तो देर वॉज समथिंग विच इज लॉस्ट। आपके, अगर हम फिजियोलॉजिकली बात करें तो आपके दिमाग में एक पूरा बॉक्स, फॉर एग्जाम्पल पूरा एक बॉक्स बन जाता है किसी एक इंसान के लिए, दैट इज फॉर योर पार्टनर। एक पूरा बॉक्स बन गया। अभी वो रोज उस बॉक्स में कुछ ना कुछ हलचल हो रही है, आज लड़ाई हो गई, आज बात हो गई, आज मना रहे हैं, आज डेट पे गए हैं, आज मूवी गए हैं, सब कुछ बता रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कंटिन्यूसली इज गोइंग समवेयर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। और अचानक से आज आपको एक्सेसिबिलिटी नहीं है, आप एक्सेस ही नहीं कर पा रहे उस इंसान को, मतलब यू आर कंप्लीटली लॉस्ट कि वो इंसान गया कहाँ। सो दैट इज ब्रेकअप। तो जो आपका वो पार्ट है लाइफ का, वो अचानक से अगर आपसे कोई छीन लेता है तो आपको समझ ही नहीं आता हुआ क्या है, एंड देन आप ट्राई करते हो उन्हें वापस लेने की। यू वॉन्ट टू गो, यू वॉन्ट टू मीट देम, यू वॉन्ट टू टॉक टू देम, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जब पिछले एरा में, जब आज से सपोज कीजिए 10 साल पहले अगर किसी का ब्रेकअप होता था रिलेशनशिप्स में, तो देयर वाज नो सोशल मीडिया जिसमें आप लोगों पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, या आपके फ़ोन्स इतने रेडिली अवेलेबल नहीं होते थे कि अपनी ही पॉकेट में है, घर में एक फ़ोन होता था या फिर पड़ोस में एक फ़ोन होता था। तो आपके पास ना दोबारा से कॉन्टैक्ट में आने के सोर्सेज बहुत कम होते थे, तो जिसकी वजह से कमिंग ओवर अ ब्रेकअप एट दैट टाइम वॉज मच ईजियर, बिकॉज योर माइंड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि ये इंसान अब नहीं है, मतलब मुझे वो नहीं मिल रहा है। बट आज क्या हो रहा है, सोशल मीडिया की वजह से आज मेरा ब्रेकअप हुआ है, 2 दिन बाद आई कैन अगेन सी कि वो बंदा क्या कर रहा है, that my girlfriend is doing what, she has posted a very beautiful picture or very laughing video on Instagram, and you go into shock कि यार हम अभी 2 दिन पहले हमारा ब्रेकअप हुआ है and she's so happy, whereas she might not be happy but she is just trying to overcome her pain through her own ways। पर आपको तो वो शॉक मिला ना, you went into shock कि इतना। तो ये क्या हुआ, आपने सोशल मीडिया के थ्रू ये जानने की कोशिश करी, देन यू आर कंटिन्यूसली कॉलिंग हर, यू आर कंटिन्यूसली कॉलिंग हर, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट वाई शी इज नॉट देयर, आई वॉन्ट टू गेट हर, यू आर गोइंग टू हर हाउस, accessibility is very easy, you're going to a hostel, you're going, you're trying to get her back, that is very easy these days, whereas पिछले एरा में it wasn't easy, it was ना के बराबर कि आप किसी लड़की के घर चले जाओ, या आप उसकी रास्ते में खड़े होकर वेट कर लो, या आप उसको इतनी इजीली एक्सेस कर लो, दिस वाज जस्ट नॉट पॉसिबल। सो दैट इज वाई उस वक्त जो हमारा ब्रेन, हाउ आवर ब्रेन इज वर्किंग, हमारे ब्रेन को उस एरा में अगर मैं बात करूं तो पता चल जाता था कि यार आई एम नो मोर एक्सेसिबल टू दैट पर्सन, मतलब मैं भी एक्सेसिबल नहीं हूं और मैं उसको भी नहीं कर पा रहा हूं, right? So it was very painful, of course, no doubt about it, but over a period of time जैसे जैसे हमें वो कांटेक्ट नहीं मिलता है उस पर्सन से, हम उससे दूर होते चले जाते हैं। हमारे जो न्यूरॉन्स अंदर जो कनेक्शंस बने हुए हैं उस पर्सन की यादों के साथ कह लीजिए, उसके साथ रूटीन जो था हमारा उसका कह लीजिए, या हमारा जो भी उसके साथ एक कनेक्शन था, उसके जो कनेक्शंस हमारे दिमाग में बने होते हैं वो फ्रैक्चर होने लग जाते हैं, वो टूटने लग जाते हैं, और ये टूटना ही ज़रूरी है ब्रेकअप में। इफ यू रियली हैव टू मूव ऑन, दीज कनेक्शंस का जो न्यूरॉन्स का जो कनेक्शन है, इनका फ्रैक्चर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज का प्रॉब्लम ये है कि हमारे दिमाग को वो फ्रैक्चर होने ही नहीं दिया जा रहा है। हमारे दिमाग ऐसे ना, हमारे न्यूरॉन्स में हम वो फ्रैक्चर ही नहीं होने दे रहे हैं। हमें फटाफट इंस्टाग्राम से पता चल जाता है व्हाट इज हैपनिंग इन दैट पर्सनस लाइफ, आज वो कहाँ है, आज उसने क्या किया, ठीक है। वेरी इजीली हम बात कर लेते हैं। अगर सामने किसी ने ब्लॉक कर दिया है तो हम उसके फ्रेंड्स के थ्रू चले जाते हैं, हम हॉस्टल चले जाते हैं, हम उनके घर चले जाते हैं। मतलब माई पॉइंट हियर इज कि इन टूडेज एरा गेटिंग टू नो अबाउट समवन्स लाइफ इज वेरी इजी। तो अगर मुझे वो इंसान रोज दिख रहा है, अगर मुझे वो रोज इंसान उसकी लाइफ में क्या हो रहा है वो दिख रहा है, और मैं उस लाइफ का पार्ट नहीं हूं, तो इट इज गोना बी हर्टफुल, नो, इट इज गोना बी वेरी पेनफुल। तभी जो है वो ब्रेकअप इतने लंबे चले जाते हैं, कम समटाइम्स तो इट इज गोइंग फॉर ईयर्स, 2-2, 3-3 साल निकल जाते हैं, एंड यू आर नॉट ओवर दैट पर्सन। वेयरएज पिछले एरा में पीपल यूज्ड टू गेट ओवर इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये तो बात हुई कि वाई हार्ट ब्रेक्स क्यों इतने पेनफुल होते हैं, क्या फिजियोलॉजिकल इश्यूज हैं, जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे न्यूरॉन के कनेक्शंस बन जाते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप हमारे रूटीन्स की वजह से बन जाते हैं, उसकी वजह से इतना इट इज़ बीइंग सो हर्टफुल। ओके, इन नेक्स्ट रील, अभी नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि ब्रेकअप के बाद जो मैं ये कह रही हूँ ना, फील करो, इसकी भी कुछ स्टेजेस होती हैं, इसके भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको जाना पड़ता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू गो थ्रू ऑल दिस पेन
so that if you understand it, you're aware about it, and then you can go through it, and so that you get released, you get relieved basically, you know. So thank you so much for watching, and do share it with somebody going through breakup, and maybe, you know, everybody should know this knowledge. So thank you so much.